the average radius of the deuteron it is around 4.2 Fermi, and this is the root mean square distance between neutron and proton. And then these things we know. These things we know experimentally. And then the binding energy of deuteron, how we can find out the binding energy of deuteron experimentally? There are some ways by which we can find out the binding energy of deuteron. The first is we can know the binding energy by the mass spectroscopy. A mass spectroscopy say we can find out binding energy, and then by knowing the smallest energy of gamma ray required to break up the deuteron. The deuteron को break करने के लिए this is by definition of the binding energy. तो उसको break करने के लिए जितनी smallest energy का अपने को gamma ray चाहिएगा, that will be equal to the binding energy. And then other way is if we bombard slow neutrons on paraffin wax, because in paraffin wax there are so many hydrogen atoms, and hydrogen atom means it is there are many protons there, and if we bombard slow neutron, very slow neutron, then there may be a situation that this, because in paraffin wax there are many hydrogen atoms, and hydrogen atom is a proton, and we are bombarding a neutron here. When this neutron, this is a very slow neutron, this interacts with this hydrogen, you can say nucleus. Hydrogen nucleus means proton. So they are protons. There are so many protons, and there are some chances that neutron and proton, they make a deuteron. If they combine, then also by definition of binding energy, some energy is liberated. This energy gamma, we detect this energy, this will be equal to the binding energy. This what is this? That neutron plus proton, this gives deuteron plus gamma. This gamma is binding energy. This represents the binding energy. And then the size of this deuteron, this can be found by the scattering of high energy electrons. So हम बहुत high energy electrons को bombard करते हैं, because electrons can't reside inside the nucleus. तो हम electrons को देखते हैं कि उनके closest approach distance हम देखेंगे, find out करेंगे, then we can find out the size of the deuteron और उसका diameter हम निकाल सकते हैं. Then the magnetic moment, how we can find out the magnetic moment? This magnetic moment, this magnetic dipole moment, this can be find out by this magnetic resonance absorption method. So this is yes, here this is magnetic resonance absorption method. So it can be find out. You must note down these things, that magnetic dipole moment experimentally can be find out by which method. This method is magnetic resonance absorption method, and this is a very accurate method. You know, the accuracy of this is 5 parts. It is 5 parts in 10 की power 8. 10 की पावर 8 में 5 पार्ट्स तक. इट्स वेरी एक्यूरेट मेथड. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, इन दोनों को रेशियो निकालते हैं. तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, ये हम निकाल लेते हैं बाय दिस मेथड. देन this if you want to find out quadrupole moment can be find out using this, you know, this radio frequency molecular beam method. Write these methods. This is electric quadrupole moment. It can be determined experimentally by radio frequency molecular beam method. Okay. Then because neutron has
नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, एंड न्यूक्लियर फोर्स binding the neutron cannot be electrical. So what it means? It means because neutron is a neutral particle, so the force between neutron and proton in case of a neutron, it cannot be electrical. It is ruled out because if neutron is negative, is of negative charge, then we can say negative and positive charge they attract each other, and then we can say that there may be some electrical nature of the force. So this thing rules out that the electrical nature cannot be, the nuclear force cannot be of electrical nature. Neither it can be gravitational. ये gravitational भी because gravitational force is a very weak force और इनके masses जो है वो बहुत weak mass, masses are of the order of 10 की power minus 27 kg. So if it is a gravitational force, then it is very weak force, and that force cannot give so much of binding energy of around 2.224 mega electron volt. This much of force can't be given by the gravitational force. So the gravitational force, the gravitational nature of this neutron proton force is also ruled out. So thus the binding energy of neutron is of different origin. This comes from here, the notion of the nuclear force comes. So under the certain assumption, it is possible to give simple quantum mechanical description to neutron. तो हम न्यूट्रॉन को ये टू बॉडी प्रॉब्लम है, इसको हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं. If we know what we know the potential. If we can't find out the potential, then we can solve this problem by simple quantum mechanical description. Then what the facts till now by the different experiments, what fact we have till now? One is that nuclear force, this nuclear force is attractive. न्यूक्लियर फोर्स का क्या है? ये अट्रैक्टिव है, और इसकी ये ना ग्रेविटेशनल फोर्स है और ना ही इलेक्ट्रिकल फोर्स है. सो ये बता दें, फर्स्ट वी अज्यूम दैट न्यूक्लियर फोर्स इज सेंट्रल. हम इसको सेंट्रल भी मान लेते हैं, बट न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल नहीं है, but we assume initially that this is central force. So then disagree with that neutron magnetic moment. So जैसे हमने central माना, तो central किससे हुआ? This assumption somewhat disagrees with the experimentally measured parameters of neutron, like that is magnetic moment, electric quadrupole moment, spin. As the magnetic moment of proton, we had discussed it yesterday that proton का जैसे पॉजिटिव होता है मैग्नेटिक मोमेंट एंड न्यूट्रॉन का नेगेटिव होता है, and if we do mu of proton plus mu of neutron minus mu of neutron, then it is non-zero. ये जीरो नहीं आता. It what it gives? It gives that there is a mesonic current there. तो हमने कल mesonic current का जो नोशन लिया था वो इसी से लिया था. This suggests that neutron may not be fully described by spherical symmetry. तो इसका मीनिंग क्या है कि जो न्यूट्रॉन है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक नहीं हो सकता. दो चीजों के कारण नहीं हो सकता. वन थिंग, बिकॉज नेट दिस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस न्यूट्रॉन इज नॉट जीरो. ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो आता है. दूसरा हमारा क्या है कि क्वाड्रपोल मोमेंट इज आल्सो नॉट जीरो. तो क्वाड्रपोल मोमेंट भी जीरो नहीं है. It indicates that in the ground state, neutron is not in spherical symmetric shape. Spherical symmetric shape means 3s1 state. Moreover, if nuclear force is due to exchange of mesons, then the magnetic moment of the nucleus when in free state may not be equal to zero. ये जीरो उसमें नहीं होगा, उनका सम नहीं होगा. So consequently, a correction to the magnetic moments may arise from mesonic current. This we had discussed yesterday. Means in the neutron and proton, they are binding each other by a small exchange particle. There is a exchange particle with this particle which we call mesons.
and mesons are charged particle. If they are exchanging here, then a small current is established between these two, and this current is called mesonic current. And this current, due to this current, the remnant magnetic dipole moment is due to this current, this mesonic current. So in addition, the same thing, that deuteron, this is also quadrupole moment, is also non-zero. It also indicates that it is not in purely spherical symmetrical state. So ये spherical symmetrical state में नहीं है, तो deuteron किसके अंदर मिलेगा? Deuteron के अंदर there is a probability of finding 3D state where L is equal to 2. So the D state contribution to the deuteron ground state wave function, it will be, इसको हम, this is not in our scope, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये बाद में होगा in your higher studies. There this can be introduced by introducing a non-central tensor force. एक non-central, यदि स्फेरिकल सिमेट्रिक मानेंगे तो सेंट्रल फोर्स हो जाएगी, बट वो नॉन सेंट्रल क्यों नहीं है? सेंट्रल इसलिए नहीं है because there is a contribution of 3D state. Whenever there is a contribution, there is this is away from spherical symmetric shape, then there is a probability of finding it the 3D state there. And if there is this the purely spherical, it is not in purely spherical symmetric state, then it means the force between these two particles, neutron and proton, is not a central force. This is due to the addition of another parameter, non-central tensor force, which depends on the orientation of the spin and relative coordinates of the nucleus. Thus, this proves that the force between neutron and proton and P system are spin dependent. If someone asks you that prove that the nuclear force is spin dependent, this is very good example, and this is a good way to prove that the nuclear force, NP force is nuclear force. This is a basic starting जहाँ से होती है nuclear force का. This is the simplest form of nuclear force. So NP is spin dependent because of this addition of non-central tensor force, and this arises because your coelectric quadrupole moment is non-zero and it is not in purely spherical symmetric state. Okay, any doubt? करना है अभी हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे. At present, however, it will be assumed that the ground state of deuteron has orbital angular momentum L is equal to 0 and spin quantum number S is equal to 1. ये भी हमने कल डिस्कस किया था. S is equal to 1 means न्यूट्रॉन भी अप स्पिन में और प्रोटॉन भी अप स्पिन में. ये बनाते ही अप स्पिन वाले पेयरिंग है, तो यही सबसे स्टेबल होती है. दिस इज आल्सो स्पिन बिकॉज दिस इज आल्सो एक्सचेंज नेचर एंड स्पिन डिपेंडेंट न्यूक्लियर फोर्स है. सो इसके अंदर क्या आ जाएगी? सो इस स्टेट के अंदर दिस मींस दैट न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स आर पैरेलल, ये पैरेलल है, एंड द न्यूट्रॉन इज इन ट्रिपलेट स्टेट. दोनों है, तो न्यूट्रॉन सिंगलेट स्टेट में नहीं होता, न्यूट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में है. दिस अप्रोक्सीमेट इज नॉट ग्रेट कॉन्सिक्वेंस बिकॉज ये जो है दिस इज आल्सो वेरी स्मॉल. ये डिफरेंस हालांकि नॉन जीरो है लेकिन बहुत स्मॉल है, और इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी बहुत स्मॉल है. तो ये दोनों बहुत स्मॉल है, तो हमने एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया, इसको तो जीरो मान लिया और इसको भी जीरो मान लिया. तो इससे हमने कंसीडर क्या किया कि ट्रिपलेट स्टेट में है ग्राउंड स्टेट में, और ये S इज इक्वल टू 1 है और L इज इक्वल टू 0 है. हमने इसको सिंपल करने के लिए इनिशियली ऐसा एज्यूम कर लिया. यदि हम इसको एज्यूम करें तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी? सेंट्रल फोर्स होगी. यदि ये भी 0 है और ये भी 0 है तो न्यूक्लियर फोर्स होगी सेंट्रल फोर्स. सो बाय एज्यूमिंग दैट द सेंट्रल पोटेंशियल डिस्क्राइब्ड बाय द इन इट्स ग्राउंड स्टेट which can be taken in the 3s1 state means triplet state, the Schrodinger equation क्या बन जाएगी? सेंटर ऑफ मास सिस्टम के अंदर, the सेंटर ऑफ मास सिस्टम के अंदर हम करेंगे तो हमारी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमने पहले के लेक्चर्स में की है.
तो सेंट्रल मास सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, हम इन दोनों को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम ये मान लेते हैं कि इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है कहीं पे, तो ये दोनों को हम यहीं पे मान लेते हैं, ये दोनों यहाँ पे हैं, तो सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम में क्या है कि टू बॉडी प्रॉब्लम को हमने वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस बाई टू म्यू, म्यू इज रिड्यूस्ड मास, म्यू रिड्यूस्ड मास है सिस्टम का, डेल्टा स्क्वायर साई ऑफ आर, V of r psi of r is equal to, this is the standard Schrodinger time independent equation, and mu क्या हो जाएगा, mu हमारा reduced mass क्या होता है, product of these two masses divided by their sum, and their mass is almost same, इन दोनों के same है, तो mn is equal to, हम ये मान लेते हैं mass of neutron is almost equal to mass of proton is equal to m(c), ये हमने कह दिया। यदि हमने कह दिया तो ये m स्क्वायर हो गया, नीचे 2m आ गया, तो इट बिकम्स इक्वल टू m बाई 2। तो इसको पुट करेंगे तो माइनस एच क्रॉस m अपॉन, ये सिंपल, हमने सिर्फ इसको सोल्व किया है, ये आपको घर पे अपने अच्छे से करनी है। एंड दिस साई ऑफ आर को हम क्या पुट करते हैं, फिर सोल्व करने के लिए इसको साई ऑफ आर को हम पुट करते हैं, साई ऑफ आर इज इक्वल टू u ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर, इसे करेंगे, और E हमारा क्या है, E बाइंडिंग एनर्जी है, E इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2.226 MeV, ये हमारा, ये हमें पता है स्टैंडर्ड। देन सो उसको आके हमने पुट किया, तो U को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसको फिर सोल्व करेंगे सारे को, इसको सारे को सोल्व करेंगे, ये सब आपको घर से करना है, डेल्टा स्क्वायर साई ऑफ आर दिस इज इक्वल टू दिस, अब हमने पुट क्या किया, u बाई आर, इसको u बाई आर पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको, ये पूरी सॉल्यूशन आप घर से करेंगे, ये आपने बीएससी में भी की है, ये बीएससी लेवल की प्रॉब्लम है, ये आपने बीएससी में की है, तो इसको सोल्व करेंगे। या ये स्टेप्स बताऊं कुछ, यस, एनीवन टेल मी? कर लेंगे सर ट्राई, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे कल। यस, वेरी गुड, ये आपने किया है पहले, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है इसके साथ, इसको बाहर रखा, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, फिर इसको अंदर लेके सेकंड टाइम डिफरेंशिएट किया, सिंपल डिफरेंशिएशन है, और ये सिमिलरली आ जाएंगे। एक्स वाला निकाल लिया आपने, एक्स के साथ निकाल लोगे, वाई का भी सेम होगा और जेड का भी सेम होगा, इनको ऐड कर दोगे तो आपका डेल्टा स्क्वायर साई ऑफ आर इसके 1 अपॉन आर इसके बराबर आएगा। तो हमारी इक्वेशन कौन सी आएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी, ये पुट करेंगे तो माइनस एच क्रॉस बाई एम डी स्क्वायर यू ऑफ आर बाई डी आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। अब इनको इकट्ठा करते हैं, इस एच स्क्वायर को इधर लेके जाए तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डी आर स्क्वायर, ये माइनस है, प्लस इस माइनस को हम इधर, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई माइनस वी वी ऑफ आर, ये यू बी यू ऑफ आर, और ये हो जाएगा m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया। अब v क्या था हमारा, v ऑफ r क्या है, हमने मान लिया स्क्वायर वेल पोटेंशियल, व्हाट यू कंसीडर इट इज ए स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, तो स्क्वायर वेल पोटेंशियल में v क्या हो जाएगा, हमने तो कंसीडर किया माइनस वी नॉट और एक कंसीडर किया 0, v नॉट कम व्हेन r इज लेस देन इक्वल टू r एंड व्हेन r इज ग्रेटर देन 0, ये हमने कंसीडर कर लिया v ऑफ r। तो इस v ऑफ r को यहाँ पर यस ग्रेटर आर नोट नहीं आएगा सर, ये 0 सर, आर ग्रेटर देन आर नोट आएगा ना। यस आर, वेरी गुड, so ये r ग्रेटर देन r नोट आएगा। सो उसका मतलब ध्यान दे रहे थे तुम, सो नहीं रहे थे, गुड। देन अब इसको हम यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या आया हमारा, ये पुट करें तो दो इक्वेशन बन गई, डी स्क्वायर यू, आर को हम भूल, आर
अंडरस्टूड है कि डी यू है, यू इज ए फंक्शन ऑफ आर, डिवाइडेड बाय डी आर स्क्वायर प्लस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई वी नोट को पुट करें तो क्या आ जाएगा, प्लस वी नोट u इज इक्वल टू 0 फॉर r लेस देन इक्वल टू r नॉट, और दूसरा हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर प्लस v क्या ये 0 m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और r ग्रेटर देन r नॉट। इज इट ओके? और ये हमारा क्या था, e इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू था, माइनस 2.224 MeV ये हमने, तो e इज इक्वल टू एनर्जी क्या है, नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी माइनस डब्ल्यू, एनर्जी तो इसके बराबर है सिस्टम की माइनस ऑफ डब्ल्यू। सो इस माइनस डब्ल्यू को यहाँ पुट करेंगे दोनों इक्वेशंस में, तो आपकी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, व्हाट योर इक्वेशंस बी? सो आपकी इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर प्लस एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस डब्ल्यू, यू इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन ए, और दूसरी क्या हो जाएगी डी स्क्वायर, ये है, सॉरी इसमें लिमिट भी लगाएंगे ना, लिमिट भी लगाएंगे, क्या लिमिट होगी इसकी, विल टेल व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस इक्वेशन, कोई बताएगा? आर लेस देन आर नॉट, इसके लिए सर 0 to r naught. डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर, और इस दूसरे में क्या हो जाएगा ये माइनस एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एच क्रॉस स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0 फॉर आर ग्रेटर देन आर नॉट। इसको इक्वेशन ए बोल दें और इसको इक्वेशन बी बोल। तो अब क्या होगा, अब हम इनको यहां देखो, हमने क्या किया, स्क्वायर वेव पोटेंशियल होगा, तो फिर हमने क्या कंसीडर किया, ये फॉर्म आ गई। ये कैसे हो जाएगी, इसको हमने क्या मान लिया, इस पूरे को के स्क्वायर मान लिया। ओके, सो एक क्वेश्चन है तुम्हारे से, कोई नंबर रियल नंबर है, ये कैसे पता चलेगा, हम कैसे श्योरली कह सकते हैं कि एक गिवन नंबर इज ए रियल नंबर। जैसे यहाँ पे जो हमने ये कंडीशन की है के स्क्वायर, और ये इसके अंदर है के और गामा जो है, दीज आर रियल नंबर्स, दिस के एंड गामा आर, दीज बोथ आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर। सो who will tell that how can you ascertain that a particular number is a real number? कोई तरीका है आपके पास, बताएंगे? सर वी नॉट बड़ा होना चाहिए W से। ना भाई ना, एक जर्नल बात पूछ रहा हूँ मैं इस पे नहीं पूछ रहा। यहाँ से भूल जाओ, उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा सर, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं ना, उसमें अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है हम तो कहते हैं उसको प्योरली रियल नंबर है। ये तो तुमने एक उस वाली बात कर दी, सिंपल सी बच्चों वाली बताई। अब तुम MSc में हो, यदि आई होगा ही नहीं, आयोटा होगा ही नहीं कहीं उसमें, तो ऑटोमेटिकली उसको कैसे टेस्ट कैसे करोगे? आपको एक नंबर दिया हुआ है एक्स के अंदर ना आई लिखा हुआ ना कुछ और लिखा हुआ, आपसे ये पूछे कि ये एक्स रियल होने की कंडीशन क्या है, ये स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए रितु? सर स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करना चाहिए उसका।
चलो और कोई? सर रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस x को कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? नंबर लाइन पे एक x दिया मैंने, x। टेल मी द कंडीशन दैट दिस x इज ए रियल नंबर। यस तनिष बताओ बेटा। यस सर। सर डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल सर ज्यादा होनी चाहिए। वेल से बाहर निकल जा पुत्र, वेल की बात नहीं कर रहे। अमन मलिक रोल नंबर 35। यस अमन बताओ बेटे। आरती 41। आरती 41 कहाँ हो बताओ बेटा। नहीं केमिस्ट्री में बोलिए, छोटा सा टेस्ट नहीं पता तुम्हें? ओके सर यस सर किसी भी गिवन नंबर को सर जैसे x है, x+1 से अगर हम कंपेयर कर सकते हैं तो वो श्योरली रियल नंबर होगा। इमेजनरी नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हम। अच्छा बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल है। हम कंडीशन ये देंगे, यदि x एक नंबर है, इसको हमें बताना ये रियल या नहीं है। इसका सिंपल है, स्क्वायर दिस नंबर, x स्क्वायर should be positive. must be greater than 0. yes, x स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। then you can say that this x is a real number. is it okay? Yes. जैसे मान लो आपका सिंपल आयोटा हो, तो आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा का स्क्वायर क्या आएगा? -1। अब करके देख लो, स्क्वायर पॉजिटिव जिसका आएगा वो रियल नंबर होगा। तो उसमें आई वाई की जरूरत नहीं। if there is a number x is given, then it means x can be real number if x square is greater than 0. ठीक है, यदि या इसको हम कहें if x square is positive, then x must be a real number. ओके तो हमारा ये जो k और गामा है ये दोनों रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर है। तो देखो ये जो है ये इनका स्क्वायर है, इसीलिए इनको स्क्वायर लिया हमने, गामा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, वी पुट दिस इज इक्वल टू गामा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू gamma square, and this is equal to k square. ये दोनों क्या है? पॉजिटिव है, बिकॉज V नॉट पोटेंशियल जो है ये बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है। क्या है? V नॉट इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी से हमेशा ज्यादा होगा। यदि पोटेंशियल बाइंडिंग एनर्जी से कम होगा तो क्या होगा? Who will tell? Why I am saying that V naught is always greater than binding energy, always greater than W? सर के इमेजिनरी हो जाएगा। नहीं, यदि V naught नहीं, इमेजिनरी नहीं बेटा, उस टर्म में मत जाओ, रियलिस्टिक टर्म में जाओ। यदि हमारा पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? वहां नेगेटिव पोटेंशियल है। जैसे हमने पोटेंशियल वैल्यू देखा, कहाँ गया, कहाँ बनाया था हमने? चलो हमने नहीं बनाया तो हम ड्रॉ करते हैं। जो साइड में पेज है इसके नीचे दिया हुआ है। क्या बेटे? तो इस साइड में आपने नोट शेयर कर रखा है, तो इसके लास्ट में जो लाइन है चलो कोई नहीं, बना देते। जैसे ये हमारा है, V नोट नेगेटिव है, इस ये यदि कम होगा, V नोट पोटेंशियल यदि कम होगा, यदि यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर यहाँ V नोट 0 है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे? फ्री होंगे, उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होगी। यदि V नोट हमारा बाइंडिंग एनर्जी से कम होगा, इट मीन्स वो पार्टिकल आपस में बाउंड ही नहीं करेंगे, उनको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी नहीं बाउंड करने के लिए।
ठीक है, तो V नोट जो है इन एवरी सिचुएशन दिस V नोट शुड बी ग्रेटर देन W फॉर ए बाउंड सिस्टम, फॉर ए बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम के लिए ये होगा, अदरवाइज न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बनेगा ही नहीं यदि V नॉट इससे कम है। इज इट ओके? किसी भी सिस्टम के लिए ओके, ऐसे यहाँ पे था। सो ये हमारा हो गया। अब ये दोनों क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिनकी आपको सॉल्यूशन पता है। इसकी सॉल्यूशन कौन बताएगा? इक्वेशन 4 की। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4? u ऑफ r क्या आ जाएगा? सर a की पावर आइटा kx प्लस b की पावर माइनस आइटा kx। वेरी गुड। या तो हम इसको ये लिख सकते हैं a की पावर आयोटा k ऑफ r प्लस b की पावर माइनस आयोटा k r। जनरल सॉल्यूशन है। और ये तो है इसकी। और इक्वेशन 5 की जनरल सॉल्यूशन क्या है? सर a की पावर गामा r प्लस b की पावर माइनस गामा r आयोटा हट जाएगा, यस सर, प्लस यस सर, e की पावर गामा r। ये दोनों माइनस गामा r। यस माइनस है। ये दोनों आपने जनरल सॉल्यूशन की है, क्योंकि कोई भी जनरल इक्वेशन ऐसी होगी तो उस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है, उन हर एक की ये सॉल्यूशन होती है। और कई बार इसको हम इस सॉल्यूशन को इसके बजाय हम कोस में और साइन में भी लिख देते हैं। यस सर, इसको भी लिख देते हैं a cos kr A cos kr plus B sin kr. या वो कोई लिख दो, ए पहले लिख दो, बी कोस पहले लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये किस में हो जाता है, e की पावर आयोटा k ऑफ r को हम क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू cos of kr plus iota sin of kr। यस, और इसको प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ के आर हो जाएगा। उन दोनों को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये है आपका। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमने यहाँ सॉल्यूशन किए होंगे। सो के हमारा क्या है? देश गामा देश, ये हम कर चुके हैं। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इसी क्या हो जाएगी? a साइन ऑफ के आर प्लस b कॉस ऑफ के आर, ठीक है। एंड देन द यूजुअल कंडीशन। अब इसकी इनकी कंडीशन देखेंगे कि अब इनकी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम। बाउंड्री कंडीशन यूजुअल कंडीशन साई ऑफ r दैट इज फॉर फाइनाइट r इज इक्वल टू 0। साई ऑफ r क्या होगा? व्हाट इज द साई ऑफ r? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? साई क्या है? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन क्या? r क्या लिया हमने? व्हाट इज r? इसे हमने लिया, यहाँ पोटेंशियल जो है ये r है, डिस्टेंस। तो यहाँ जब ये r इज इक्वल टू 0 पोजीशन है, 0, तो इस 0 पोजीशन के ऊपर भी वेव फंक्शन दोनों एग्जिस्ट करते हैं ना, क्योंकि हमने क्या लिया है? टू बॉडी प्रॉब्लम को भी कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉडी प्रॉब्लम, क्यों दोनों एक ही उस पे बना दिए। तो r इज इक्वल टू 0 क्या होगा? जब वो दोनों होंगे तो वहां पे हमारा साई क्या होगा? इसके ऊपर भी at this point at r is equal to 0 what will be psi? Psi must be finite। तो psi क्या होना चाहिए? psi finite होगा, क्योंकि psi की, क्योंकि दोनों हमने सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों यहाँ पे हैं, तो हमने जिसको किस में कन्वर्ट किया है, व्हाट इट मींस? इट मींस आवर psi इज इक्वल टू, हमने क्या पुट किया था? u अपॉन r, और साई r इज इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए? फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाएगा। तो u क्या हो? इसको हम रिवर्स भी लिखें तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r साई। r इज इक्वल टू 0 पे साई फाइनाइट है तो u क्या हो जाएगा? 0। जब हम 0 बाई 0 की टर्म कर देंगे तभी हमारा साई क्या हो सकता है? फाइनाइट।
अदरवाइज r इज इक्वल टू 0 पे यदि ये नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो होने का मीनिंग क्या है कि साई क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। और साई इनफाइनाइट नहीं हो सकता, यहाँ साई की फाइनाइट वैल्यू होगी क्योंकि यहाँ इसके ऊपर ये प्रेजेंट होगा। सो इसके अंदर हमारी कंडीशन हमने लगाई, यूजुअल कंडीशन ऑन साई ऑफ r that is finite at r is equal to 0 and 0 at r is equal to किस पे, यहाँ पे साई हमारा क्या होना चाहिए, वेनिश कर जाना चाहिए, इसके बाद नहीं रहेगा। तो ये हमने कंडीशन लगाई। तो इस कंडीशन को लगाने से हमारा क्या हुआ, b क्या आ गया, इसके अंदर आप देखो 0 पुट करोगे इसको, तो 0 पुट करोगे r is equal to 0, r is equal to 0 इसमें पुट करो, पुट करेंगे हमारा क्या आएगा, at r is equal to 0, u of r 0 होगा, 0 is equal to a sin of 0 plus b cos of 0, cos of 0 क्या होता है 1, ये तो 0 हो गया, 0 is equal to b, तो b हमारा क्या आ गया 0, तो हमारा u of r क्या हो गया a sin of k of r। ये हमने बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगाई, तो ये हमारा आ गया फॉर r लेस देन इक्वल टू r। इज इट ओके? यस सर। यस सर। कोई मुश्किल तो नहीं था? ओके। नो सर। दूसरी जनरल सॉल्यूशन आपने बताई दूसरी इक्वेशन की, तो इक्वेशन 5 की जनरल सॉल्यूशन क्या होगी, इक्वेशन 5 की जनरल सॉल्यूशन आप पहले बता चुके हैं, u ऑफ r इज इक्वल टू, इसको प्लस भी ले लोगे यदि आपने आप सॉल्यूशन करते हुए आपने ये लिख दिया u ऑफ r इज इक्वल टू c e की पावर प्लस लिख दिया आपने गामा r प्लस d e की पावर माइनस गामा r, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। c और d क्या है, कोफिशिएंट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, यदि आप ऐसा लिखोगे तो आपका किसके अंदर, हमारे के अंदर क्या हो गया, d खत्म हो गया, d 0 हो गया, यहाँ पे c 0 हो जाएगा, बचेगा आपका यही। तो इसलिए ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन हमारी 5 थी, जैसे हमने लास्ट पेज पे किया है, ये 6 पे हमने किया है, हमने ये फॉर्म लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने पहले प्लस लिख दिया फिर माइनस लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रट्टा नहीं मारना है। हमें ये पता होना चाहिए कि इस टाइप की जो इक्वेशन है उसकी सॉल्यूशन ये होती है कि एक के अंदर तो एक्सपोनेंशियल की पॉजिटिव टर्म आती है, जो भी ये यहाँ पे होता है इसका इनटू में r जिसके रिलेटिव है ये r है, तो यहाँ पे यदि यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, और यदि यहाँ पे गामा है तो गामा हो जाएगा। यदि गामा की बजाय आप इसको कोई और कांस्टेंट नाम देना चाहो, यू कैन गिव एनी अदर नेम, आप गामा की बजाय इसको काई कह सकते हो, आप इसको पहले ही आप कुछ और कहना चाहो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम के और गामा कहें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको समझ के करना है इसको, नो नीड टू क्रैम। सो ये हो जाएगा। देन अब इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन क्या है, क्या u ऑफ r क्या होगा कि जो हमारा यहाँ बाउंड्री होगी एट r इज इक्वल टू r नॉट, कैन देयर बी ए डिसकंटिन्यूटी इन u, क्या u के अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी हो सकती है यहाँ पे, कोई बच्चा बताएगा? जो नेचुरल फंक्शन होते हैं उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, तो u हमारा जैसे u इज इक्वल टू साई ऑफ r है, एक तो आपको क्या करना है, दिस इज होम असाइनमेंट फॉर यू, कि आपको प्लॉट करने हैं दोनों, u को आपने प्लॉट करना है वर्सेस r, और आपको साई को प्लॉट करना है वर्सेस r, ये दोनों प्लॉट करने हैं दोनों ग्राफ में। तो जो u है ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, तो एट r इज इक्वल टू r नॉट, इस बाउंड्री कंडीशन के ऊपर u ऐसा नहीं हो सकता कि u इस टाइप का बनता है, इस टाइप का बनेगा और ऐसे जाएगा। तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर एट r इज इक्वल टू r नॉट, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी r नॉट के ऊपर, इधर आएगा कुछ और होगी। दोनों केसेस के अंदर यहाँ पे u मस्ट बी फाइनाइट, u मस्ट बी फाइनाइट।
एट r इज इक्वल टू r नॉट। ये फाइनाइट होगा। यदि ये फाइनाइट होगा तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता। तो आप इसके अंदर देखो, हम r इज इक्वल टू r नॉट पुट करेंगे, यहां इसमें चले जाओ, क्या देखो इसका मीनिंग क्या है, एट बाउंड्री एट इंफिनिटी दिस डिमांड्स एट, और इन्फिनिटी यहाँ पे तो होगा फाइनाइट, और दूसरा u जब आगे जाएगा इंफिनिटी पे तो यहाँ u क्या होना चाहिए, u टेंड्स टू ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे u वेनिश करेगा। तो u वेनिश करेगा, तो जब हम इसको r टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे यहाँ पे, तो u इंफिनिटी रखेंगे, u इंफिनिटी दिस इज इक्वल टू c e की पावर, यदि हम यहाँ वाला माइनस लेते हैं तो माइनस को ले लें, माइनस इंफिनिटी प्लस d e की पावर इंफिनिटी। तो e की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, और हमने इसको वेनिश करवाना है, 0 करवाना ऑलमोस्ट, तो ये टर्म क्या करनी पड़ेगी, d, इट मींस d मस्ट बी 0। तो हमारा d क्या होना चाहिए, d हमारा 0 होना चाहिए। ये कंडीशन आई, एट इंफिनिटी डिमांड्स दैट d इज इक्वल टू 0। ये d 0 क्यों हुआ, क्योंकि एट इंफिनिटी जो हमारा u होगा वो तो डिके करेगा। तो u का यदि आप ग्राफ बनाएंगे तो वो इस टाइप का बनता है, r, ये हमारा r नॉट है, तो ये हमारा ऐसे जाता है और फिर ऐसे ऐसे करता है। तो ये हमारा u का ग्राफ है, u का आपको बनाना है, आपको घर जाके करना है ट्राई। तो ये यहाँ 0 से स्टार्ट क्यों होगा, 0 से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा। सो u ऑफ r, फिर हमारा क्या आ गया, ये आ गया, ये आ गया बाउंड्री कंडीशन के कारण, व्हेन r ग्रेटर देन r नॉट u ऑफ r इज इक्वल टू e की पावर माइनस गामा। गामा की वैल्यू हमें पता है। अब r इज इक्वल टू r नॉट पे, जैसे मैं तुम्हें कह रहा था, बाउंड्री कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमारे देयर शुड नॉट बी एनी डिसकंटिन्यूटी आइदर इन psi और इन u ऑफ r। इन दोनों के अंदर यहाँ डिसकंटिन्यूटी होगी, कंटिन्यूअस फंक्शन है। यदि एक पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए अपने को क्या करना होता है कि एट r इज इक्वल टू r नॉट psi ऑफ r, कि दोनों जगह, दोनों रीजन में वैल्यू psi ऑफ r नॉट इज दोनों जगह सेम होनी चाहिए। नॉट ओनली देयर वैल्यू, देयर डेरिवेटिव मस्ट आल्सो बी सेम। किया होगा ये आपने पहले? यस सर। यस Yes. आपने किया ना कि आपको किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू दोनों रीजन्स के अंदर प्लस उनके डेरिवेटिव्स की वैल्यू, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर a साइन ऑफ k r नॉट यहां से लिया हमने, u r नॉट, एक u r नॉट यहां से लिया, दिस इज इक्वल टू c e की पावर माइनस गामा r नॉट यहां से लिया, और इनके डेरिवेटिव किए इन दोनों के। इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, a के आगे आ जाएगा साइन का कोस ऑफ r, r की जगह क्या पुट करोगे, r नॉट, a के कोस ऑफ k r नॉट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे, c माइनस गामा आगे चला जाएगा, माइनस गामा c e की पावर माइनस r नॉट। दिस, if this function, if this psi and u of r, if this u of r is a continuous function at r is equal to r naught, then this u of r naught in both the regions must be same, as well as derivative of u of r in at r is equal to r naught in both the regions is same। ये कंडीशन हमारी है। ये किसी फंक्शन के, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए कंडीशन लगाते हैं। ओके